नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू अनदर एनलाइटमेंट एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा, a podcast show by Khushbu Seth. Today we are going to talk more about politics, social activities, social issues and all these things. And to join us for these issues, we have our special guest Wasim Pathan ji. So let's grab a conversation with him on our Chai Pe Adda and have a conversation about all these things. So let's welcome Wasim ji. वसीम जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे. नमस्कार. Thank you so much for inviting me for this show. Yeah, we are obliged to have you over this show. And हम आपको ये पूछना चाहेंगे, you started your career as a social worker, right? Yeah. So can you share your journey as a social activist? Yeah, sure. So I first completed my graduation, and after which I had my family business. So I was actually supporting my dad in our own business itself. Okay. Later on, there were some things which actually moved me. I saw a few accidents on the roadside itself. Oh. So I saw people were dying on the spot itself. The accident was taken place at the highway itself, and I saw a person dying on the spot. But secondly, I have also seen that there are others who are not at all helpful. Okay. They were just making their videos, they were just clicking their pictures and all. So that was something which actually touched my heart, and I just felt that I should do something so that even I can contribute my 1% for this thing. That would be an achievement for me. Yes. इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी में ये घटना बहुत गहरी असर कर गई. You know, ये बहुत टच हो गया आपको. And you started as a social worker. It's really a good deed, and you know, people should come forward for all these things. But ठीक है, आपने एक अच्छे इनिशिएटिव से ये चालू किया एज एन सोशल वर्कर. सो यू वर्क फॉर एन एनजीओ और यू हैव योर एनजीओ. कैसे आप वर्क करते हो? Yeah, so first of all, I have my own people who like almost I have 150 to 200 people who are my friends from my colleges and my schools who are still in touch with me. So we have our own group. So we make our own group and we start helping people. So we have done several activities. You have a special group of people. Exactly. आपने बनाया है अपने दोस्तों के साथ. और उसके साथ you work with the NGOs and all that things. Yes, exactly. So first I started my own NGO that was Nirdhar, and later on there were few other NGOs who got to know about us, and so they started contacting me. So since they got to know that this person is doing several activities. So what kind of activities your NGO run? Can you brief us a few? Sure. So for example, if on any special occasion, for example, I have my own birthday. So I do not contribute by celebrating my birthday by cutting a cake or something. Instead, I call my people. We go to some NGO. The people who do not have anyone with them, we go to such places. We distribute clothes and all for them. Yes. Secondly, if there are children who do not have their parents, we go to such NGOs. We try to help them by contributing with some pens or books and so on. So this is the social work which actually we do. Plus, when we were in my college life, so we had our own groups who are still in contact with me. And even recently, there are many people who are doing their own colleges and they got to know about me and they are still in touch with me. So we have done several activities like Women Safety Organization. So that was something, a seminar which I have conducted in few colleges. So you work for especially for the women. Exactly. Yeah. Woman agenda. You stand for that. So what kind of things you cover in this? Yeah. So basically, women safety is my prime goal. For example, if so we do several seminars. For example, I have my own group where people we perform some skits on the stage itself. The principal is present of the college, the teachers are present. They first of all they welcome us for the same things, and we do our own skit. Okay. For example, you get an awareness to the audience through your script and all that thing. Yes, exactly. Amazing. Can you name us few themes which you have scripted for the woman awareness? Yes, exactly. So first of all, when a woman is walking on a road, so what all are the challenges that she faces? Yes. So that is a major concern. For example, if a woman is walking to a normal street, so what happens, there are several people who are watching her. Some people comment, some people try their own actions, and recently we all know the condition of women in Maharashtra also. So this is something which is a
prime focus for me and my people. Yeah, and that's true. दर्शकों कैसे होता है in the city when the woman is walking तो it's casually goes for a walk, then कोई नोटिस करता है, कोई नहीं करता है, कोई कमेंट करता है. लेकिन स्मॉल प्लेसेस विलेजेस में इफ शी कम्स आउट, वो बाहर आती है कुछ करने के लिए, तो लोगों का नज़रिया बहुत ही अलग होता है. कोई सोचता है ऐसे घूमने जा रही है, फिरने जा रही है, घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए, इसके लिए काम कर रही है. तो it's really very nice script. I think everybody should know all this thing because women's safety is must in India. I think in the worldwide because जहाँ वो महफूज नहीं रह सकती तो वो will insecure feel करती है. Exactly. तो आपकी स्क्रिप्ट ऑडियंस के थ्रू you make an awareness to them. तो it is Yes, really very nice thing you are doing. So but your politically journey कैसे चालू है? As you are saying me, you are worked as a socialist NGO. So I've heard you are into the politics. So why you this transaction of this politics? Yeah, so while doing several work, तो बहुत सारे NGOs के थ्रू हमने कंसर्न भी किया, हमने उनसे कांटेक्ट किया और उसके बाद हमने जो भी हमने काम किया उसको हमने न्यूज़ के थ्रू हर ग्रुप्स में, हर सोशल मीडिया पे फैलाया. हाँ. तो हमारा खुद का न्यूज़ चैनल्स भी है जहाँ पे मेरे कज़िन है जो न्यूज़ रिपोर्टर है, उनका खुद का चैनल है. सो वो न्यूज़ रिपोर्टर है और वो रन करते हैं उनका न्यूज़. तो हमने जो भी एक्टिविटीज़ किया तो हमने उनको साथ में लेके किया. उन्होंने पूरा कवरेज किया उस चीज़ को, उन्होंने उनका न्यूज़पेपर में भी डाला, प्लस उन्होंने उनके वीडियोज़ पे भी शेयर किया जो उनका जो न्यूज़ चैनल्स होता है. तो इस तरह से अवेयरनेस बढ़ती गई. अभी 100 से ज़्यादा ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे और कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं. तो एक मैसेज को फॉरवर्ड होने के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगता है. यस ट्रू. प्लस मैं जो एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ हमारे होम टाउन पे वो मुंबई में भी पता चलती है. हाँ, राइट. या सो इस तरह से बढ़ता है बात. सोशल मीडिया इज समटाइम्स अ गुड वेपन फॉर मेनी थिंग्स. माइनस भी है लेकिन प्लस थिंग्स में बहुत अच्छी से काम करता है. एंड इन वसीम जी ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हुई है, उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और आप ये पॉलिटिकल के बारे में बताइए, द ट्रांजेक्शन यू केम थ्रू इट. जी, तो मैंने अपने एरिया से बात करता हूँ. मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, जिस लोकेलिटी से आता हूँ, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज डहानू, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ है. एरिया में भी इश्यूज़ है जैसे कि वाटर सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ है, प्लस बहुत सारे लोगों को पेमेंट्स नहीं मिल रहा है ठीक से. जैसे कोई सैलरीड वर्कर है उनको ठीक से पेमेंट नहीं मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ NGO के थ्रू कवर नहीं होते. उस चीज़ को एक स्टैंड चाहिए, यू नीड अ प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है. और मैंने जो काम किया है उसको मतलब हमारे पूरे लोकेलिटी में, पूरे एरिया में फैल चुका था. प्लस हम लोग हमारे बैनर्स लगाते हैं जो भी हम सोशल वर्क करते हैं. तो उस वजह से मुझे there are some people who came to me, for approached being me. in the party. Yeah, and after looking at my work, I was appointed by my district president. Yeah. So I joined Shiv Sena. I have done several activities after that. Very nice, you know कि कैसी बहुत ये दानू जी, उन्होंने दानू की बात की है वसीम जी ने, लेकिन बहुत सारे एरियाज है जहाँ ये जो नेसेसरी है, जो बेसिक नेसेसरी है जो हमारी है, पानी और बिजली, वो नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों में. वर्कर्स लेबर्स को पेमेंट नहीं मिलती है. तो ये इश्यूज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए और ज़ोर डालना चाहिए और ऐसे ही अलग अलग लोग जुड़ने चाहिए ताकि यू नो कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो दिख सके, बाहर आ सके एंड सॉर्ट आउट हो सके. तो गुड पॉइंट, यू हैव गॉन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड यू टुक द स्टैंड. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आप स्टैंड लेके आप ये कामयाबी हासिल कर सकते हो. So what do you मतलब you continue to that political party for your work or what else you did then? Yeah, so मैंने बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया. फॉर एग्जांपल 2017 से म्यूनसिपैलिटी के कुछ वर्कर यूनियन है, उनका सैलरी वाज जस्ट 6000. तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है हर जगह पे. तो जिस वजह से उनको जो पेमेंट है फ्रॉम लास्ट 10 years 12 years से जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो परमानेंट हो चुके हैं, इसके बाद भी उनका सैलरी इज जस्ट 6000, सो विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड. देयर आर सेवरल अदर पीपल हु ट्राई टू वर्क बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू सॉल्व. So these people came to me, I started working on these issues and I was able to solve it after almost like 6 to 7 years. और मैंने कम से कम 3 से 4 हज़ार का उनको प्रॉफिट करके दिया उनके एवरी मंथ के सैलरी में. तो मेरे हिसाब से अगर मैं 1% का भी कंट्रीब्यूशन करता हूँ जिसकी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आए, सो दैट्स अ कंट्रीब्यूशन फॉर मी. यस सो मैं ये चीज़ सोचता हूँ. और आप लोग से भी कोई इश्यूज़ है, यू डाउट है, यू वांटेड टू टॉक टू हिम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो.
we will help you to the strength as much as we Exactly, can for our best, you know. And please do comment कि आपके कुछ issues है या कुछ भी related है, आप हमारे comment में डाल सकते हो. एंड आपने ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज के लिए स्टैंड लिया है. सो कुछ ऐसे स्पेसिफिकली चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी, कभी आपको लगा हो कि इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग और आपने वो अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो? ओके, सो चैलेंजिंग एज इन बहुत सारी चीज़ें आई, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू वर्क फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी देयर आर सेवरल पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन. सो ये भी एक चीज़ है. तो इस इतने ज़्यादा प्रेशर पे भी काम करना, दैट्स अ चैलेंज मेरे हिसाब से. प्लस इफ़ यू हैव सपोर्ट ऑफ योर पीपल, अगर आपके साथ आपके लोग, आपके फैमिली सपोर्ट हो, सो आई बिलीव कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. सो दैट इज़ वन थिंग. मैंने म्यूनसिपैलिटी के साथ में मैंने सेवरल फीमेल रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व किया है. जैसे कि मोलेस्टेशंस होता है फीमेल्स को, गर्ल्स को. सेवरल कमेंट्स होते हैं, उनको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं. कुछ लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. दे ट्राई टू फॉलो देम, दे ट्राई टू ब्लैकमेल देम. सो ये सब चीज़ें मेरे पास आई है. अवेयरनेस इन दिस पॉडकास्ट आई वुड ट्राई टू मेक यू अवेयर ऑल दिस थिंग. जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन्होंने जैसे वसीम जी ने बताया कि फेक अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम के, तो आप प्लीज़ केयरफुल लीजिए. सारी फीमेल यूज़र बी केयरफुल, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि ये भरोसा करने लायक है. बिकॉज ये फ़ोटोज़ भी सही नहीं होते हैं, जो लिखा रहता है वो भी सही नहीं रहता है. तो आप किसी को भी फ्रेंड लिस्ट में रखें तो उसको जान पहचान वाले को रखें, अपने कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स को रखें. अननोन पीपल से दोस्ती ना करें, बिकॉज अच्छे भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वी डोंट नो कौन ख़राब है और कौन अच्छा है. तो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट. प्लीज़ वसीम जी आप कंटिन्यू कीजिए. जी श्योर. ठीक है, तो फीमेल सेफ्टी भी एक चीज़ था जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है. मतलब मैक्सिमम 90% मैंने इस टॉपिक पे ही काम किया है. मैंने साइबर क्राइम केसेस सॉल्व किए लोगों के, जैसे कि फेक अकाउंट्स होते हैं, दे ट्राई टू फॉलो. तो कई बार ऐसा होता है कि दे ट्राई टू अप्रोच, या कभी कभी फीमेल्स को थोड़ा अटपटा लगता है कि उनकी मतलब उनके नाम खराब हो सकते हैं. सो ऐसी फीमेल्स मेरे पास आए हैं पर्सनली एंड दे ट्राई टू स्पीक विद मी. मेरे सामने मैंने रोते हुए भी देखा हो बहुत सारी गर्ल्स को, स्पेशली कॉलेज गर्ल्स को. और मैंने उस चीज़ को मेरे हिसाब से सॉल्व किया साइबर क्राइम केस करके. मतलब लेकिन मैंने किसी की लाइफ ख़राब नहीं किया आज तक. मैंने जो भी पर्सन था इस चीज़ में इन्वॉल्व, मैंने उसको एक फाइनल वार्निंग दे के इस चीज़ को ख़त्म किया. ये 3 से 4 बार हुआ है जिसमें मैंने साइबर क्राइम केसेस किया है सामने वालों पर, एंड आई वॉज सक्सेसफुल इन दैट. प्लस मैंने PWD रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन. अगर पॉट होल्स ख़राब है, आपका रोड ठीक से नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं. प्लस एक्सीडेंट्स होते हैं तो एम्बुलेंस को भी जाने को ठीक से जगह नहीं होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. तो अभी इसमें भी भ्रष्टाचार होता है बहुत ज़्यादा. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा. आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट द ओनली थिंग इज़ अगर आप अच्छा काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको काम मिलेगा. अदरवाइज़ आपके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो मैंने किया है बहुत बार और मैं आगे नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट. बट this is a major concern, because if you do not try to help people, so indirectly you are getting targeted. Yeah. So this was also one of the concern. This is just a point हमारा put forward था for it viewers. It is not specifically for any person or a party or any religion or anyone. बट इट्स लाइक अ बात है जो बताना है, क्योंकि चाय पे चर्चा है तो चर्चा करते हैं, बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है. आपको अवेयरनेस भी दिला रहे हैं हम कि यू नो कि सेफ्टी, जैसे वुमेन सेफ्टी की बात की थी, तो वुमेन सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है. कैसे रहता है कि हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं. फॉर अ फीमेल यूज़र आई वुड ट्राई टू टेल कि आप अपनी स्टोरीज़ में कैसे पोस्टर्स डालते हो, आप सैड डालते हो, हैप्पी डालते हो, तो सामने वाला उस हिसाब से आपको टारगेट करेगा. अगर आप उस हिसाब से, अगर आपका अकाउंट आपने ओपन रखा है, या ऑब्वियसली और बिजनेस अकाउंट होगा या पर्सनल अकाउंट होगा, तो वो उस हिसाब से वो स्टोरीज़ को देख के आपको टारगेट करेगा, यू नो शायरीज़ के थ्रू टारगेट करेगा. बी वेरी मच केयरफुल, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ मिक्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट पीपल. सो बहुत सारी है, आपके इमोशंस को टारगेट करेगा. तो बी वेरी वाइज बिफोर चूजिंग एनी फ्रेंड और एनीबडी फॉर योर लाइफ पार्टनर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ देम टू बी वेरी वाइज. एंड आई नो यू ऑल आर वाइज, सो आपको समझ में आता है. डोंट allow anyone to target your emotions.
सो ये बहुत आपने जैसे सोशल एनजीओ के लिए काम किया, एज एन सोशल एक्टिविस्ट काम किया, देन यू केम एज एन पॉलिटिशियन. सो पॉलिटिशियन में आई हर्ड नाउ यू आर फॉर वर्किंग एज एन एनसीपी एक्टिविस्ट. सो हाउ वाज द ट्रांजैक्शन फॉर शिवसेना टू एनसीपी? Yeah, so actually my dad passed away recently, like 2 years before. So मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाया to continue with शिवसेना, और बहुत सारे issues थे. So even that is one of the concern. Plus when there is a death in your family, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा pressure आता है. Even your dad business must be there and you have to settle all these things. So concentration आपके बढ़ गया. जा चुका था, and I was about to stop everything, but later on I have seen that people are still approaching me even. गुड वर्क करना कभी इंसान एक बार चालू करता है तो बंद नहीं कर सकता. तो इट कीप्स ऑन डूइंग. फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी गुड वर्क करेगी ही, तो ये नहीं तो वो पार्टी. वेरी नाइस एंड गुड ट्रांजैक्शन यू हैव केम फ्रॉम के. अच्छी बात है कि गुड वर्क करना है हमें. मेन तो अच्छा काम करना है, कहीं से भी खड़े रह के. इफ यू वांट टू डू अ गुड वर्क, आप कौन से भी प्लेटफॉर्म से अच्छा काम कर सकते हो. कौन से भी पार्टी से आप अच्छा काम कर सकते हो. खाली अच्छा काम करने की आपको चाह होनी चाहिए. Exactly. So any suggestions or any things you want to say to our viewers, you can please proceed. Yeah, so I believe जो मैं काम कर रहा हूँ वो हर कोई कर सकता है. You have females in your houses also, your mom, your sisters, your personal people, your friends. So इनकी ज़्यादा सेफ्टी की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से. एंड इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम देयर वर्क, जैसे कि जॉब से अगर छुट के अगर वो रात के वक्त आते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑटो कुछ होता नहीं, टैक्सेस होते नहीं. सो इन दैट केस मैं समझता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस वक्त उस शख्स के लिए आप खड़े रहें, सो दैट ऐसे प्रॉब्लम्स कम हो. और जो हिसाब से प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, आई बिलीव इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बॉय टू बी ऑनेस्ट कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे. दिस इज़ द मेजर कंसर्न, फीमेल सेफ्टी. प्लस यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि जो भी आप काम करो दैट शुड बी 100%. व्हेन आई जॉइन पॉलिटिक्स, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं आगे जाके नगर सेवक के लिए ट्राई करूँ या एमएलए के लिए ट्राई करूँ. मुझे बस खुद का एक नाम बनाना था, पॉजिटिव वे में, किसी नेगेटिव वे में नहीं, जो कि मैं बना चुका हूँ. और मैं यही चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा. और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मुझे अप्रोच मिल रहा है थ्रू कॉलेजेस, सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू मुझे बुलाते हैं, दे ट्राई टू कॉल मी. प्लस जो रिस्पेक्ट मुझे मिलता है, जो मैंने खुद ने बनाया है, विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट और विदाउट एनी डिफरेंट सपोर्ट, बिकॉज आई एम द ओनली वन इन माई फैमिली जो कि पॉलिटिशियन है. Started as an activities NGO and then into politics. The only thing is I have my people with me, my friends with me who are you still need a supporting support me. system for that. Exactly. So and plus I have got very good support from all the departments, चाहे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, हर जगह से मुझे हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट मिला है. अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो और अच्छा काम करना चाहते हो तो सारे लोग आजू बाजू अपने आप अच्छे हो जाते हैं और अपने को पुश करते हैं वो अच्छा काम करने. ये एक सोच अच्छी होनी चाहिए, एक नीति अच्छी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ऑल दी वाइब्रेशन, ऑल दी एनर्जी विल हेल्प यू टू डू दैट. प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं रहते हैं, इंडिया में तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबके घर पे भी रहते हैं, सबके दिलों में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, सबके मन में जैसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स तो रहते हैं, लेकिन यू कम आउट, सॉर्ट आउट, फाइट फॉर इट, स्टैंड फॉर इट, वॉइस आउट फॉर इट. सो मुझे लगता है आज का सेशंस हमारा बहुत ही अवेयरनेस के लिए था और बहुत हमने सेंसिटिव टॉपिक्स पे भी बात की थी. तो आई होप दर्शकों आपको अच्छा लगा हो. अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो कि आगे के नोटिफिकेशंस आपके एपिसोड्स के आपको आते रहेंगे. और मिलते हैं हम अगले शुक्रवार को कुछ नए टॉपिक्स के साथ. एंड थैंक यू वसीम जी फॉर जॉइनिंग अस एंड हैविंग अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद अस. वी आर रियली लाइकिंग इट. और हमें कमेंट ज़रूर करना आपकी जो राय है और आपकी कोई सोच हो तो. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, धन्यवाद.